آئے عزیزوں ہم اپنی باتوں کا آغاز کرتے ہیں. ہم اپنے سر کو جھکاتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور مکمل طور پر خداوند کی حضوری کو محسوس کریں گے، کیونکہ ہمارا زندہ خداوند خدا اس وقت یہاں موجود ہے، اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے. آئے ہم دل سے اپنے خداوند کو پکاریں گے. چند منٹ کی خاموشی میں مکمل طور پر اپنا دھیان خداوند کی طرف لگائیں گے. خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین. مسیح میں میرے عزیزوں، ہم انسان ہوتے ہوئے گناہ گار ہیں. آئے ہم سب مل کر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تاکہ لائق اور واجب طور پر آج اس مقدس محفل میں، اس مقدس عبادت میں ہم مکمل طور پر شریک ہو سکیں. مل کر توبہ کا عمل پڑھیں گے. توبہ کا عمل. اے میرے خدا، میں اپنے سارے دل سے پشیمان ہوں. میں نے تیری بےحد نیکی اور بزرگی کے خلاف گناہ کیا ہے. میں اپنے سب گناہوں سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ وہ تجھ کو ناخوش کرتے ہیں. اے میرے خدا، تو جس سب پیار کے لائق ہے اور میں نہایت مضبوطی سے ارادہ کرتا ہوں تیری پاک فضل کی مدد سے ہرگز تجھے ناراض نہ کروں گا، گناہوں کی راہ سے کنارہ کروں گا. آمین. اپنے سروں کو یوں ہی جھکاتے ہوئے، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اپنے لبوں کو کھولیں گے خداوند کی شکر گزاری کے لیے. اور میں گزارش کروں گا بہن صوفیہ سے کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی کرے. کرتے ہیں اور اپنی خودی کا انکار کرتے ہیں کہ خداوند ہم انسان ہوتے ہوئے گنہگار ہیں. ہم آپ کا شکر کرتے ہیں کہ آپ پھر بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. آسمان باپ بار بار اپنے قدم میں آنے کا فضل بخشتے ہیں. ہم آپ کا شکر کرتے ہیں. اس عبادت کے آغاز کو خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے خدا باپ جی شروع کرتے ہیں. آسمان باپ پوری عبادت میں آپ کے پاک کا مسا، آپ کا خدا کا نام اور آپ کی آسمان باپ ہم سب جھٹتے جائیں اور تو ہمیں بڑھتا جا. ہم سب چھوٹتے جائیں اور تو ہمیں نظر آ. آسمان باپ آئے کہ تمام جڑوں کو آپ کی ٹھنڈک کرتی ہوں. آسمان باپ ایک دور قسم کا بدن کو آپ کے خون میں چھپا دیتی ہوں. آسمان باپ ایک کو چھو کر وسا دیجیے گا. ایک کو چھو کر بڑی برکت دیجیے گا. پرستش کے وسیلہ سے، کلام کے وسیلہ سے بدن ٹوٹتے جائیں اور آسمان باپ آپ کا آسمان ہمارے لیے کھول جائے. آسمان باپ ایک جان کو چھو اور خدا جو ابھی تک نہیں آئے اور آنے کا ارادہ رکھتے ہیں. آسمان باپ آپ کے پاک فضل کی مدد سے خدا تمام رکاوٹوں کو دور کر تاکہ میری لوگ میرے حضور میں آئے اور میری شکر گزاری کرنے والے بنے اور آسمان باپ آپ سے نعمتیں اور برکتیں حاصل کرے. کیونکہ خدا جو کوئی تیرے گھر پر آتا ہے کبھی بھی خدا تجھ سے دیکھنا نہیں آ پاتا. آسمانی باپ کو اپنا آسمان کھولتا اور اپنا ہاتھ بڑھاتا خدا ہر ایک جاندار کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. میں تیرا شکر کرتی ہوں آج کے اس خدا مبارک دن کے لیے، اس خوبصورت وقت کے لیے جو آپ کی حضوری میں جھکنے کے لیے ملا. آسمانی باپ ہمیں توفیق دے تاکہ پورے دل جان سے خدا تیری خدمت کرے اور تیرے نام کو جلال میں بڑھتے جائیں. ایک کو چھو کر خدا مسا کرنا اور کثرت کی برکت دینا. آسمانی باپ جو بھی خدا تیرے بیٹے یا بیٹیاں خدا اپنے دلوں میں خدا باپ جی مرادیں لے کر آئے ہیں، آسمان باپ ان کی دلی مرادوں کو پورا کرنا اور کوئی بھی خدا خالی ہاتھ نہ لوٹے. ایک کی مشکلات پریشانیوں کو دور کرنا اور خدا اپنا ہاتھ خدا باپ جی بڑھا تاکہ خدا یسوع کے نام کو کثرت سے جلال دکھانا دے. آسمان باپ میری دعا کو سن اور قبول کر. میں نے سب کچھ مانگا ہے آپ کے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے نام سے. آمین. خداوند کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی پرستش کا آغاز کریں گے. ہم سب مل کر زبور 9 گائیں گے. دائم یہوہ یا رب، قائم ہے حق تیرا.
रोज़े के क़याम का ख़ास ख्याल रखते हुए हालेलुया का नारा कोई भी नहीं लगाए।
دائم یہوہ یا رب، قائم ہے تخت تیرا۔ اسی میں میرے عزیزو ایمان رکھیں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا تخت ہمارے درمیان لگ چکا ہے۔ خداوند فرماتا ہے میں دنیا کا نور ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ زندگی کا نور پائے گا۔ آئے خداوند کی پرستش میں آگے بڑھتے ہوئے ایک اور مل کر زبور گائیں گے۔ زبور بھائی یاد یہوہ دی سب کرن گے کنڈے سارے دنیا میں۔ اپنے ہاتھوں میں استعمال کرتے ہوئے
सारियां कौमां जुग जुग जावण डर रखण गियां ओसे दा क्यों जो राज यहोवा दा है हाकिम है वो कौमां दा। आए मेरे अजीजों, दफा फिर अपने सर को झुकाते हुए खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे और आंटी मरियम के साथ मिलकर दुआ करेंगे। खुदावंद खुदा आज हम हमारी दुआओं को सुने और कबूल करें। शुक्र भाव आसमानी रब्बुल फाज, जिंदगी और जिंदगी की तमाम गनीमतों के खालिक और मालिक यीशु राजा, तू यहोवा यरी खुदा है, तू अपनी असली जिंदा जलाली भाव है यीशु जी, तू जोरावर खुदा है, तेरे वालों की तसल्ली हमें जोर बख्शती है भाव आसमानी, क्योंकि इंसान होते हुए हम नहायत कमजोर है, न चाहते हुए ऐसे काम करते थे जो तू प्यारे खुदा नापसंद करता है। सो प्यारे खुदा, इस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करते कि तू हमें छूता है और तू हमसे ऐसे काम लेता है जो तू पसंद करता है यीशु जी। तेरी इस लाजवाब मोहब्बत के लिए हमारा दिल तेरी शुक्र गुजारियों से बड़ा हुआ यीशु जी। तो हमें प्यारे खुदा तमाम तकनीकों से आरास्ता करता है, इस बात के लिए, इस तेरी मोहब्बत के लिए तेरा दिल और दिल की अथाह गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं। शुक्र अदा करती है कि तू रहीम और दिल का फरोतन है, तू दुखी दिलों की पुकार की आवाज है बाप आसमानी, तू मेरा पाक और पवित्र खुदा है यीशु राजा। हम तेरे हाथों की कारागरी है यीशु जी, तो हमें इंतहाई हद तक प्यार करता है। जब हम कामिल ईमान से तुझे जलाल देते हैं, जब अपने आप को तेरे आगे सिलेंडर कर देते हैं, जब अपनी तमाम जरूरियात को तेरे कभी हाथों में देते हैं, तो बाप आसमानी तुम्हारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करता है यीशु राजा। इस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, शुक्र अदा करते हैं रोजों के अय्याम में प्यारे खुदा, इस नए साल में भी प्यारे खुदा तूने हमें सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, ताकि हम इन रोजों के अय्याम में अपने आप को तेरे ताबे करने वाले हो सके, रोजा रियाजत दुआ खैरात करके तेरे नाम को जलाल देने वाले हो सके। जब हम प्यारे खुदा रोजा रख के तुझसे इल्तिजाएं करते हैं, जब तुझसे प्यार करते हैं, तो बाप आसमानी तुम्हारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है यीशु जी। तेरी इस मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आए हुए तमाम जानों के लिए तुझसे बरकत की दुआ चाहती हूँ। जो जो दुआएं मिनती इल्तिजाएं लागे प्यारे खुदा, इनकी दुआओं को काबिल कबूल करना यीशु राजा, क्योंकि तू दुआओं में तो इल्तिजा को सुनने वाला कामिल खुदा यीशु जी। प्यारे खुदा, आज की तमाम इबादत को तेरे ताबे करती हूँ, चलाने वालों को तेरे ताबे करती हूँ, आज की हम तो सना के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे तब तलक जाने के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू जो हमें चारों तरफ घेर चुका है, इस बात के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं। शुक्र अदा करते हैं कि तमाम रूहों को प्यारे खुदा छू, और तूने हिकमत की रूह से तूने लफ्जों की तरतीब देना, ताकि आज के दिन जो बोले तेरे नाम की खातिर बोले, और यीशु राजा हमारे दिल की झरनियों में भरता चला जाए। क्योंकि प्यारे खुदावन, जब हम बड़े कामिल ईमान से तुझे पुकारते हैं, तो बाप आसमानी तुम्हारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है यीशु राजा। इस बात के लिए भी मेरा दिल तेरी शुक्र गुजारी से भरा हुआ प्यारे खुदावन, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। आमीन। मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद को पुकारा और उसने सुन ली। खुदावंद फरमाता है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई। आए अजीज़ों, खुदावंद की प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए हम मिलकर गीत गाएंगे, तेरे कदमों में आए हैं
हमको छू ले यीशु। अपने नाम का इस्तेमाल करते हैं। अपनी हथौड़ी से रूठी माहौरी से, अपनी हथौड़ी से रूठी माहौरी से हमको भर के हमको भर के ला 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 ला
तेरे कदमों में आए हैं हमको छू ले यीशु। आए अजीजों, बड़े ईमान के साथ वो अपने कदमों पर खड़े हो जाए, क्योंकि हमारा खुदावंद खुदा अपने जलाल से हमें मामूर करता है, अपनी हजूरी से हमें मामूर करता है। खुदावंद फरमाता है कि मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूँ। ईमान रखें, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वो हमारे हाथों को थामे हुए है। वो हमें हर बुराई से बचाता है, हर वबा से बचाता है, क्योंकि वो भला खुदा है, क्योंकि वो चंगियाई का खुदा है, क्योंकि वो नेक खुदा है, क्योंकि वो सुलह और सलामती का शहजादा है। वो मुझे और आपको छूता है। जब हम ईमान के साथ उसके कदमों में आते हैं तो वो अपनी हजूरी से हमें मामूर कर देता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद फरमाता है कि कयामत और जिंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। आए खुदावंद के आगे अपनी दुआएं बिछाए रखते हैं, अपने हाथों को बुलंद करते हुए अपनी आंखों को बंद करेंगे मुकम्मल तौर पर और खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे, क्योंकि जिंदा खुदावंद खुदा हमें छूने को है। ईमान रखें, वो हमारी तमाम कमजोरियों को दूर कर रहा है। अब मिलकर गीत गाएंगे, छू मुझे छू, उदार हो मुझे छू। अपनी आंखों को मुकम्मल तौर पर बंद रखें, महसूस करें, सिर्फ और सिर्फ अपनी सोचों में खुदावंद यीशु मसीह को रखें। वो सलीब पर हमें अपने पास बुला रहा है, अपनी बाहें फैलाए हुए कहता है, मेरे बेटे या मेरी बेटी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दुनिया की हर एक चीज दूंगा। और जब जिंदगी का बादशाह, कुल कायनात का बादशाह हमारी जिंदगी में होगा तो फिर हमें किसी चीज की कमी ना होगी। तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोचों में, अपने ख्यालों पे, अपनी आंखों में, अपने कानों में, अपनी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ यीशु को रखें। होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, ऐ यीशु। होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, ऐ यीशु। छू मुझे छू, खुदा रो मुझे छू, छू मुझे छू, खुदा रो मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू मुझे। खुदावंद आपको छू रहा है। खुदा मुझे छू मुझे छू। वो हमारी तमाम मुश्किलों को, परेशानियों को दूर कर रहा है। मुझे छू
हड्डी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संभाले। आहिस्ता आहिस्ता। हड्डी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संभाले। यूं ही कलामे खुदा गूंगे हमें संभाले। यूं ही कलामे खुदा गूंगे हमें संभाले। मुझे खुदा मुझे आगे मुझे खुदा मुझे मेरी जान को मेरी रूह को मेरे को छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे को छू मुझे छू खुदा बिल्कुल आहिस्ता गाएंगे। इसकी अंतरे को मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगियों में महसूस करेंगे, क्योंकि हमारा खुदावंद खुदा हमारी तमाम आलूदगी को, हमारी जिस्म के तमाम गुनाहों को पाक और साफ कर रहा है। जिस तरह उसने उस औरत को पाक और साफ किया जो गैर वक्त ज़ना में पकड़ी गई और खुदावंद ने उसे माफ किया। मुकम्मल तौर पर आहिस्ता आहिस्ता इसको गाएंगे महसूस करके। आलूदगी जा जिस्म की रूकी को दूर कर दे। आलूदगी जा जिस्म की रूकी को दूर कर दे। मुझे दो मुझे दो खुदा मुझे दो खुदा मुझे दो खुदा मुझे दो। ऐ बेटी मत घबरा, तेरे गुनाह माफ हुए। जलाल बाप और बेटी रूह कुदस का हो। तशरीफ रखें, कलाम का पढ़ और हम दावत देंगे भाई तारीख की दुआएं और आज के जिंदा कलाम से हम सबको उर्दू करें।
हम अपने सरों को झुकाएं खुदावंद की हुजूरी में, अपने आप को सरेंडर करें और दुआ करेंगे कलाम के लिए। कदोस मेहरबान बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो खुदावंद, तेरा नाम मुबारक हो खुदावंद कि तू हमें प्यार करता है। आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो इस वक्त के लिए कि तूने हमें बख्शा कि हम तेरे सुंदर कदमों में आ सकें। खुदावंद जिंदा जलाली यीशु, हम अपने आप को सरेंडर करते हैं खुदावंद। खुदावंद अपने दिलों को तेरी हुजूरी में रखते हैं, अपनी जान, बदन और रूह को खुदावंद तेरे आजूर में सरेंडर करते हैं। अपने पाक रूह की आग उंडेल दे खुदावंद, ये सारी जगह खुदावंद तेरे पाक रूह की आग से भर जाए। एक एक जान, बदन और रूह पर तेरा मसा ठहर जाए, तेरी हजूरी से ये जगह भर जाए खुदावंद। तेरा मसा हमें घेर ले, तेरा आबर हमें घेर ले खुदावंद। खुदावंद सारी डिस्टर्बेंस पैदा करने वाली, सोचों को, ख्यालों को मुंतशिर करने वाली सारी गंदी नापाक तस्वीरें यहां से जाती रहे। खुदावंद तेरे पाक रूह की आग यहां पर भर जाए, तेरा मसा ठहर जाए खुदावंद। मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं खुदावंद। खुदावंद मैं नहीं बल्कि खुदावंद तेरा पाक रूह मुझ में से बोले। खुदावंद तेरी मदद और रहनुमाई चाहते हैं। खुदावंद यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ईमान पैदा होता है सुनने से, और सुनना मसीह के कलाम से। ठीक है, सुनना मसीह के कलाम से। और ज़बूर नवीस लिखता है कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर उनको शिफा देता है। तो फिर हमने ये भी देखा है, ये लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही खुदा था। और फिर आगे जाके हम पढ़ते हैं कलाम मुजस्सम हुआ, हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के वहीद का। मेरे अजीजों, ये सब तो बात यीशु मसीह के बारे में लिखी गई है। यानी कि इब्तिदा में यीशु था और यीशु ही खुदा था। मेरे अजीजों, ये जिंदा कलाम, मैं हमेशा कहता हूं जिसने यीशु को देखना है, ये है, ये कलाम है खुदा का। और कलाम मुजस्सम हुआ, वो यीशु की सूरत में हमारे दरमियान रहा, इस दुनिया पर, इस जमीन पर, सरजमीन पर चलता फिरता रहा। मेरे अजीजों, ये खुदावंद का कलाम ही है जो हमें बहाली अता करता है। क्या करता है? बहाली अता करता है। बहाली क्यों अता करता है? क्योंकि हमारा कुछ खो गया है। खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि हम बहुत सारी चीजें खो सकते हैं, लूज कर सकते हैं। हम लोगों को खो सकते हैं, हम अपने रिश्ते खो सकते हैं, अपनी चीजें खो सकते हैं, अपना मालो दौलत खो सकते हैं, हमारा नुकसान हो सकता है, तबाही और बर्बादी हो सकती है, और हमारा टाइम बर्बाद हो सकता है। क्या? हमारा टाइम हमसे जाता रहता है, खोया जा सकता है, हम अपना वक्त जाया कर सकते हैं, रिश्ते भी बहाल हो सकते हैं, थोड़े वक्त के बाद हमें नए रिश्ते मिल सकते हैं, हमारा जो मालो दौलत, घर बार, पैसा जो हम खो देते हैं, नुकसान हो जाता है, वो आने वाले वक्त में हमें मिल सकता है। लेकिन क्या टाइम मिल सकता है? मरने वाले आदमी से अगर उसको पूछा जाए कि उसको क्या चाहिए,
क्या मांगेगा? वो टाइम मांगेगा। सबसे कीमती चीज जो हमारी जिंदगी में है वो क्या है? टाइम है, वक्त है। तो मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि वो बहाल करने वाला खुदावंद है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बहाली, रेस्टोरेशन। और आज हम जानेंगे कि बहाली के क्या असूल हैं। हम कहीं भी रहते हैं, किसी भी मुमलकत में, बादशाहत में रहते हैं, तो हम उस मुमलकत के, उस बादशाही के, उस शहर के, उस जगह के कवानीन की पाबंदी करते हैं। तो जो ये रूहानी बादशाहत है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। मेरे अजीजों, वो बादशाही, वो खुदावंद की बादशाही जो हमारे दरमियान है, हमें उसके प्रिंसिपल्स के मुताबिक ही अपनी जिंदगियां गुजारनी है। खुदावंद का कलाम जो है वो बहाल करने वाला कलाम है। कुछ भी, कोई इंसान लॉस की बात नहीं सुनना चाहता। कोई इंसान सुनना चाहता है, हमें पसंद है कि हम नुकसान की या लॉस की बात सुने। हर इंसान चाहता है कि उसको प्रॉफिट की, फायदे की बात मालूम हो। वो सुनना चाहता है, उसे खुशी होती है कि कोई फायदे की बात हो। नुकसान की बात कोई नहीं सुनना चाहता। खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि हम चीजें खो सकते हैं, रिलेशनशिप खो सकते हैं, टाइम भी खो सकते हैं। हमारा टाइम जाता रहता है, हम टाइम जाया कर देते हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि खुदावंद इन तीनों चीजों को बहाल करने की कुदरत रखता है। क्या? खुदावंद का कलाम इन तीनों चीजों को, लोगों को भी जो हमारी जिंदगी में हमारे प्यारे हमसे जुदा हो जाते हैं, वो उन्हें बहाल करने की कुदरत रखता है। वो टाइम को भी हमारी जिंदगी में बहाल करने की कुदरत रखता है। खुदा टाइम में नहीं रहता मेरे अजीजों। हम कहते हैं खुदा अव्वल से लेकर हमेशा तक है। हमेशगी क्या है? वो वक्त जो जिसकी कोई हद नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है। इटर्निटी, जिसका कोई एंड नहीं है। खुदा टाइम के बाहर रहता है। ये जो इब्तिदा और ये हमेशगी के लफ्ज यूज हुए, ये सिर्फ हमें इंसानों को समझाने के लिए यूज हुए। खुदा इससे बाहर रहता है। वो ना माजी में रहता है, ना मुस्तकबिल में रहता है। वो मौजूद है हर वक्त। इसीलिए जब मूसा ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है, तो उसने क्या कहा? मैं हूं सो हूं। वो टाइम से बाहर रहता है, इसलिए वो टाइम को कमांड करता है। वो हमारे लिए वक्त को वैसे ही बहाल कर सकता है। उसका कलाम जो है वो उसकी अथॉरिटी को, उसकी इंटेग्रिटी को जाहिर करता है। रेस्टोरेशन, कोई मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, वो भी एक बहाली का अमल है। यीशु मसीह ने बहुत सारे मुर्दों को जिंदा किया, तो वो क्या था? बहाल कर दिया, वापस जिंदगी में बहाल कर दिया। आए खुदावंद के कलाम में से देखते हैं। योएल नबी की किताब है, उसका 2 बाब और 21वीं आयत से पढ़ेंगे। खुदावंद का कलाम हमें बताता है, ऐ जमीन हरासा ना हो, खुश हो और शादमानी कर, क्योंकि खुदावंद बड़े बड़े काम करने को है। ऐ मैदान के हवानों हरासा ना हो, क्योंकि बियाबानी चिरागाहें सब्ज होती हैं और दरख्त अपना फल लाते हैं और अंजीर और अंगूर अपना पूरा समर देते हैं। और तुम ऐ सहून के फरजंदों खुश हो और खुदावंद अपने खुदा में शादमानी करो, क्योंकि वो तुम्हें मुअल्लम सदाकत अता करेगा और पहले की तरह पहली और पिछली बारिश तुम्हारे लिए वक्त पर वक्त भेजेगा।
बस खलियान गेहूं से भर जाएंगे और कोलू नई मैं और ताजा तेल से लबरेज होंगे। और खास बात ध्यान से सुनिए, 25वीं आयत है, 2 बाब योएल नबी की किताब 2 बाब 25वीं आयत। और मैं उन बरसों का वो हासिल तुम्हें वापस दे दूंगा। क्या? और मैं उन बरसों का वो हासिल तुम्हें वापस दे दूंगा जो मेरा तुम्हारे खिलाफ भेजा हुआ लश्कर अजीम यानी टिड्डी और मल्ख और झांझा और जराद निकल कर चट कर गया। तुम खूब सेर होकर खाओगे और खुदावंद अपने खुदा के नाम की सताइश करोगे जिसने तुम्हारे लिए अजीब काम किए हैं, और मेरी उम्मत फिर कभी शर्मिंदा ना होगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, इस खुदावंद के कलाम में हमने देखा कि खुदावंद बरसों का जो नुकसान है, पिछले सालों में 10 सालों में 20 सालों में जो आपका नुकसान हुआ है, वो सारी चीजें खुदा आपको इसी साल 2022 में देने की कुदरत रखता है। तो आपका टाइम बहाल होता है। खुदावन जो आपने 20 सालों में पिछले गुजरे हुए सालों में हासिल करना था, खुदावन आपको वो इसी साल देने की कुदरत रखता है। प्रेज गॉड। जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की, रेस्टोरेशन की, बहाली की, तो जरूर है कि हम इस बात को जान लें कि बहाली से पहले बर्बादी आई होती है। तो बर्बादी जो है, जो तबाही है, जो हमारा नुकसान हो गया है, जो लॉस हो गया है, उसकी क्या वजूहात है? खुदावंद का कलाम हमें 5 बातें बताता है। कितनी? 5 बातें। 5 बातें जो है वो हमें बताता है खुदावंद का कलाम, कि हम वो सीख सकते हैं कि क्या वो चीजें हैं जिनकी बदौलत हम नुकसान उठाते हैं। तो नंबर 1 जो है, लैक ऑफ डिसर्नमेंट, समझदारी का ना होना। गुरु की नेमते हैं हिकमत, समझ। नंबर 1 जो चीज है जिसकी वजह से हम नुकसान उठाते हैं, वो क्या है? समझदारी। समझदारी का ना होना। मेरे साथ निकाले खुदावंद के कलाम में से अमाल की किताब, अब्रानियों की किताब 2 बाब और 1 आयत से सुनो। इसलिए वाजिब है कि जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करें, ऐसा ना हो कि हम दूर चले जाएं। खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि हम दिल लगाकर सुने, दिल लगाकर उसको समझें। ऐसा ना हो कि हम दूर चले जाएं, पीछे रह जाएं, नुकसान उठाएं। दूसरा, यसाया का 1 बाब हम देखेंगे। वहां खुदावंद का कलाम हमें बताता है, यसाया 1 बाब लिखा है, तीन आयत से, बैल अपने मालिक को और गधा अपने मालिक की चरनी को जानता है। क्या? बैल अपने मालिक को और गधा अपने मालिक की चरनी को जानता है, मगर इस्राएल ने ना जाना और मेरी उम्मत ने ना समझा। खताकार कौम और गुनाह से लदी हुई उम्मत और बेदीन नस्ल और बदकरदार फर्जंदों पर अफसोस। जानवर जो है वो अपने
मालिक को पहचानते हैं, लेकिन इंसान जो है वो अपने खालिक और मालिक को नहीं पहचानता, उसको समझता नहीं, उसके कवानीन को नहीं समझते, उसकी बातों पर ध्यान नहीं लगाते, उसके कलाम पर सोचते नहीं है, गौर नहीं करते, उसको समझते नहीं है। मेरे अजीजों, मैंने पहले भी बड़ी दफा कहा है, इब्लीस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप चर्च में आए, दुआएं करें, कुछ भी करें, उसको फर्क उसी वक्त पड़ता है जब आप इस जिंदा कलाम को समझ जाएंगे और ये कलाम आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा, फिर इब्लीस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपने देखा होगा लोग चर्च भी आते हैं, उनके काम भी बिगड़े रहते हैं, खराब ही रहते हैं, बीमार भी रहते हैं, जब तक आप इस कलाम को समझते नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है कि समझदारी के बगैर हम नुकसान उठाते हैं। नंबर 1 बात है कि जब हमारे अंदर समझदारी नहीं होती हम नुकसान उठाते हैं, हमारा लॉस होता है। हिजकिय्याह की किताब में देखेंगे, हिजकिय्याह 5 बाब 12 बाब और 1 और 2 आयत पढ़ेंगे। खुदावन के कलाम में लिखा है, मैंने खुदावन का कलमा पाया, उसने कहा कि ऐ इब्ने बशर, तू बागी घराने के बीच में रहता है, देखने के लिए उनकी आंखें तो हैं पर वो देखते नहीं, सुनने के लिए उनके कान तो हैं पर वो सुनते नहीं, क्योंकि वो एक सरकश घराना है। सरकशी और बागीपन क्या है? खुदा के अहकाम से दूरी, उसके खिलाफ खड़े हो जाना, बगावत करना खुदा के खिलाफ। और जब हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं तो खुदावन के कलाम के मुताबिक खुदावन का कलाम हमें कहता है कि हम नुकसान उठाते हैं। अमाल की किताब में अगर हम देखें 28 बाब, अमाल 28 बाब और लिखा है, तुम सुनते हुए सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे, और देखते हुए देखोगे पर हरगिज ना पहचानोगे, क्योंकि इस कौम का दिल शकीन हो गया है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और अपनी आंखों को बंद कर रखा है। ऐसा ना हो कि आंखों से पहचाने या कानों से सुने और दिल से समझ कर रजू लाएं और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। मेरे अजीजों, खुदावन का कलाम कहता है कि हम खुदावन के कलाम को सुनते नहीं है, उसकी आवाज को सुनते नहीं, हमारे कान प्यारे हो गए। हम ऐसा सुनते हैं कि हम समझते नहीं है, हमें समझ नहीं पड़ती है। खुदावन का कलाम हमारी जिंदगी में काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता? क्योंकि हम सुनी अनसुनी करते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। चर्च में आते हैं, चर्च से बाहर निकले कलाम भूल जाता है। अपने पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी ताकत से, पूरी समझ से, अकल के साथ खुदावन के कलाम को सुने और उसको अपने दिल में, अपनी जिंदगी में जगा दें। क्योंकि लिखा है कि ऐसा ना हो कि आंखों से पहचाने या कानों से सुने और दिल से समझ कर रजू लाएं। जब हम दिल से समझ कर रजू लाएंगे तो फिर हम शिफा पाते हैं। हमारे हर एक जिंदगी के हर एक पहलू में शिफा नाज़िल हो जाती है कलाम की बदौलत। बहाली का ताल्लुक जो है वो समझदारी के साथ। अगर हमारी जिंदगी में समझदारी की कमी है, नहीं है, तो फिर बहाली नहीं हो सकती है। नंबर 2, केयरलेसनेस, लापरवाही, निगलेक्ट, नजरअंदाज कर देना। जब हम नजरअंदाज कर देते हैं चीजों को, हम गौर नहीं करते, तो खुदावन का कलाम हमें बहाल नहीं कर सकता। जब हम चीजों को गौर से नहीं देखते तो हम बहाल नहीं किए जा सकते। जब हम लापरवाही करते हैं, और लापरवाही, हम उन मौके जो हमारी जिंदगी में हमें मिलते हैं, हम उन मौकों को जाया कर देते हैं। वो प्रोफेटिक वर्ड्स
جو نبوتی کلام ہے وہ خدا کا کلام ہے، ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس پر لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیں عبرانیوں کا خط 2:3 آیت لکھا ہے، اس لیے واجب ہے کہ جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل سے غور کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم دور چلے جائیں۔ اور تیسری آیت میں لکھا ہے، اور ہر ایک قصور اور نافرمانی نے واجبی بدلہ پایا، تو ہم کیوں کر بچیں گے جب اتنی بڑی نجات سے غافل رہیں گے۔ جب ہم لاپرواہی کریں گے، جب ہم غافل رہیں گے، اس نجات کے کلام کو، اس نجات کی باتوں کو لاپرواہی سے سنیں گے، اس کو اپنی زندگی میں موقع نہیں دیں گے۔ خداوند کا کلام ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، وہ ہم اس کو موقع نہیں دیتے کہ وہ خدا کا کلام ہماری زندگی میں کام کرے، کیونکہ ہم لاپرواہی کرتے ہیں، نیگلیکٹ کرتے ہیں چیزوں کو۔ اسی طرح خداوند کے کلام میں 2-3 واقعات ہیں جو لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت بڑا نقصان اٹھایا گیا۔ ہم دیکھیں گے وضاحت کی کتاب، وضاحت 11 باب اور 30ویں آیت، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یفتہ، اس پر خداوند کا روح نازل ہوتا ہے اور وہ خدا کے روح سے مأمور ہو کر اب بنی امون کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ غیر قوموں کے خلاف جنگ کرنے جاتا ہے اور خداوند کا ہاتھ اس پر ہوتا ہے، لیکن لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ کیا؟ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ پڑھ کے سناتا ہوں اس نے کیا کہا۔ یفتہ نے خداوند کی منت مانی اور کہا کہ اگر تو بنی امون کو میرے ہاتھ میں دے تو جب میں بنی امون کے پاس سلامتی کے ساتھ پھروں گا تو میرے گھر کے دروازے میں سے جو کوئی مجھے ملنے کو باہر نکلے گا وہ خداوند کا ہوگا، میں اسے سوختنی قربانی گزرانوں گا۔ دیکھیں کس قدر اس آدمی نے، یہ خدا کا روح اس پر نازل ہوا ہے اور یہ جنگ کے لیے جاتا ہے، لیکن جوش کے ساتھ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جو کوئی بھی جب جنگ کے ساتھ جیت کر آؤں گا تو پھر کیا کروں گا، جو کوئی بھی میرے گھر سے پہلے نکلے گا وہ خداوند کا ہوگا اور اس کو میں سوختنی قربانی کے لیے گزران دوں گا۔ تو میرے عزیزو آپ جان کر حیران ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ جانتے بھی ہوں اس بات کو، کہ جب وہ جنگ جیت کر آیا تو اس کی ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی، وہ ناچتی ہوئی گاتی ہوئی اس کے گھر سے نکلی۔ تو اس بندے نے کیا کیا، اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور اس نے اپنی بیٹی سے کہا تو نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اگر لاپرواہی کا مظاہرہ کر کے منت نہ مانی ہوتی، اس کا کوئی بیٹا اور بیٹی نہیں تھی، صرف یہی اکلوتی بیٹی تھی جس کے لیے جب وہ گھر سے جیت کر آیا فتح کا تو اس کی بیٹی کو گھر میں پتا چلا کہ میرا باپ جیت کر آیا، تو وہ خوشی سے سب سے پہلے وہی اس کا استقبال کرنے کو آئی۔ تو میرے عزیزوں لاپرواہی جو ہے وہ ہمیں بہت بڑا نقصان دے سکتی ہے، اس لیے جب بھی کوئی منت مانے یا کوئی بات اپنے منہ سے نکالے تو لاپرواہی کی بات نہ نکالے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے متی کے انجیل 14 باب، سب واقف ہے۔ یہاں پر ایک بیوقوف بادشاہ ہیرودیس ہے جو اس قدر مست ہے، جو خوش ہے، شراب پیے ہوئے پارٹی بنا رہا ہے، اور اس نے کہا ہیرودیس کی جو اس کی ہیرودیاس کی بیٹی تھی اس نے بہت ڈانس کیا اور وہ خوش ہوا، اور اس نے جلد بازی میں لاپرواہی سے کہا مانگ جو کچھ تو مانگے گی۔ اس نے قسم کھا کر کہا کہ جو کچھ تو مانگے گی میں تجھے دوں گا، اور اس نے اپنی ماں سے مشورہ کیا اور اسی لمحے تو دیکھیں کیا ہوا، اسی لمحے اس عورت نے ہیرودیاس نے کیا کہا،
मुझे यूहन्ना इस्तबागी का सर चाहिए थाल में। और बादशाह पछताता है कि अब मैं क्या करूं, लेकिन वो अपनी कसम से मजबूर था। उसने सारे लोगों के सामने कहा था कि जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। तो लापरवाही से बोले गए अल्फाज हमें बहुत बड़ा नुकसान दे सकते हैं, हम नुकसान उठा सकते हैं। जिंदगी में 3 चीजें हैं जिनकी बेस पर हम अपने फैसले करते हैं। तो 3 चीजें हैं। सबसे पहले आखिरी जो सबसे कमजोर है उससे बात शुरू करते हैं, जो लापरवाही का नतीजा बनती है। लापरवाही के फैसले या बातें हमारे मुंह से निकलती हैं, वो सबसे जो कमजोर है, नंबर 3, वो है इमोशन। इमोशंस, जज्बात। मेरे अजीजों, इब्लीस जो है वो जज्बात के साथ खेलने में मास्टर है। जज्बात के साथ खेलने में मास्टर है। वो हमें बेचैन कर सकता है और हम कोई गलत फैसला ले सकते हैं, कोई गलत बात कर सकते हैं। नंबर 2, रीजनिंग, दलाइल देकर। ये थोड़ा सा उससे मजबूत फैसला होता है। इमोशन से, जज्बाती नहीं, दलील के साथ। उसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसकी बेस पर हम कोई फैसला लेते हैं। ये थोड़ा उससे बेहतर फैसला हो सकता है। लेकिन जो तीसरा है, जो नंबर 1 है, जो सबसे पावरफुल है, वो है समझदारी। हमें समझदारी की जरूरत है, और वो समझदारी जो है वो हमें खुदावंद का कलाम अता करता है। यहां पर हम देखते हैं उस बादशाह ने नबी का सर कटवा दिया। वो औरत जालस थी, क्योंकि नबी ने कहा था, यूहन्ना इस्तबागी ने कहा था कि तुझे अपने भाई की बीवी रखना रवा नहीं है। तो मेरे अजीजों, लापरवाही जो है वो हमें बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। नंबर 3, इग्नोरेंस, जहालत, लाइल्मी। बादशाहत के कवानीन, बादशाही की राहों के जो कवानीन हैं उनसे लापरवाह रहना, लाइलम रहना, जहालत का मुजाहरा करना। ज़बूर नंबर 82 में हम देखते हैं, ज़बूर नंबर 82 5 आयत में लिखा है, वो नहीं जानते और नहीं समझते, वो तारीकी में चलते फिरते हैं, जमीन की बुनियादें हिलती हैं। ध्यान दे खुदा उनके कलाम पर। मैंने कहा कि तुम खुदा हो। खुदा जो है वो इंसानों को कह रहा है कि तुम खुदा हो, तुम सब हक ताला के फर्जंद हो, तो भी तुम आदमियों की तरह मरोगे। क्यों? और सरदारों में से किसी एक की तरह गिर जाओगे। क्यों मरोगे? लिखा है कि वो नहीं जानते और नहीं समझते, वो तारीकी में चलते फिरते हैं। खुदा की बादशाहत के जो कवानीन हैं उनसे लापरवाह रहना, उनसे जहालत का मुजाहरा करना, लाइलम रहना भी हमें खुदावन के कलाम से दूर रखता है। नुकसान का मुजाहरा हो सकता है, हमारी जिंदगी में नुकसान आ सकता है। इमसाल की किताब 19 बाब 2 दूसरी आयत में लिखा है, जोश बगैर तफक्कर के फायदामंद नहीं है, जो चलने में जल्दबाजी करता है वो फिसल जाएगा। जोश के साथ, जोश में आ जाना, एकदम से कोई फैसला कर देना, तफक्कर के बगैर। तफक्कर क्या होता है? समझदारी, इल्म। उसके बगैर जब हम फैसले करते हैं तो नुकसान उठा सकते हैं। आगे हम बढ़े तो खुदावंद के कलाम में इफ्सियों का खत 4 बाब और 18 आयत में लिखा है, इसलिए 17वीं आयत से पढ़ते हैं, इसलिए मैं ये कहता हूं कि खुदावंद के हुजूर मिन्नत करता हूं कि तुम उसके आगे ऐसी चाल ना चलो जैसे गैर कौमें चलती
غیر قومیں اپنی باطل عقل کے موافق چلتی ہیں کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے اور وہ اس جہالت کے سبب سے جو ان کے دل کی سختی کے باعث ہے ان میں ہے خدا کی حیات سے جدا ہے۔ جب ہم جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں اور خدا کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ خداوند کا کلام ہمیں ہمیشہ کی زندگی دلاتا ہے۔ اگر ہم جہالت کا مظاہرہ کریں تو ہم خداوند کے کلام کے مطابق ہم نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ نمبر 4، ابھی تک ہم نے جو نقصان اٹھانے والی چیزیں بات کر رہے ہیں، پہلا کیا تھا؟ سمجھداری، دوسرا لاپرواہی، تیسرا جہالت، لا علمی، چوتھا ابیوز یا مس یوز۔ جب ہمیں بہت سارے مواقع ملتے ہیں، ہمیں چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، لیکن ہم اس کا استعمال جو ہے وہ غلط طریقے سے کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ چیزیں جو ہیں ان کا غلط استعمال کرتے ہیں، وقت کا استعمال، اتھارٹی، جب ہمیں موقع ملتا ہے، ہمیں اختیار ملتا ہے، ہم اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ چیزیں، متی کی انجیل 25 باب اس کی 14ویں آیت میں پڑھیں اگر ہم تو ہمیں وہاں پر ایک تمثیل ملتی ہے، کنتاروں کی تمثیل۔ یسوع مسیح نے ایک تمثیل کہی کہ 3 لوگوں کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ کنتار دیے گئے، ایک کو 5، ایک کو 2 اور ایک کو 1۔ جس کو 5 دیے گئے اس نے استعمال بہتر کیا، اس نے 5 اور کمائے، جس کو 2 ملے اس نے اور 2 بنائے، اور جس کو 1 ملا اس نے کیا کیا؟ اس نے مس یوز کیا، اس نے ابیوز کیا اس کا، اس نے اس کو دبا دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ اس کو کیا ملا؟ اس کو سزا ملی۔ اسٹوری کے آخر میں کیا ہے؟ اس کو سزا ملی۔ اسی طرح پہلا سیموئیل 2 باب اور اس کی 12ویں آیت میں اگر ہم پڑھیں تو وہاں عالی کاہن کا ذکر ہے۔ عالی کاہن جس کے پاس سیموئیل بڑا ہوا، وہ عالی کاہن جس کے پاس رہ کر بچہ سیموئیل بڑا ہو کر بہت بڑا نبی بن گیا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ عالی کے بیٹے خبیث تھے۔ پہلا سیموئیل 2 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے اور عالی کے بیٹے خبیث تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ کاہنوں کو یہ پریویلیج حاصل تھا، ان کو یہ اختیار تھا، ان کا یہ حق سمجھا جاتا تھا کہ جب بھی کوئی سوگتنی قربانی چڑھانے کے لیے آتے تھے، وہ دیگ میں گوشت ڈالتے تھے تو ان کے پاس ایک پنجے نما ایک چیز ہوتی تھی جیسے کانٹا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر ڈالتے تھے، وہ مار کے، اور اس کے اندر سے جو گوشت ہوتا جو بھی اس کے اوپر لگ جاتا وہ پھر کاہن کا ہوتا، وہ کاہن کا حصہ ہوتا سمجھا جاتا تھا۔ یہ خدا کے قانون کے مطابق تھا۔ لیکن یہ جو عالی کاہن تھا، اس کے جو بیٹے تھے، یہ اپنے اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے اور جو بھی قربانی گزرانے جاتا اس سے گوشت قربانی سے پہلے ہی مانگ لیتے، سوختنی قربانی چڑھانے سے پہلے ہی اس سے کہتے کہ میرا حصہ یہیں سے مجھے دے دے، کیونکہ ہم کاہن کو کیا کر رہے ہیں؟ کباب بنانے ہیں۔ لکھا ہے اس میں، اگر ہم یہ 2، 3 اور 4 باب پورے باب پڑھیں دوسرے سے چوتھے تک تو یہ پوری سٹوری ہے، اور ایٹ دا اینڈ سٹوری کے آخر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ دونوں بیٹے، جب جنگ ہوتی ہے، بنی اسرائیل کی جنگ ہوتی ہے، تو وہ دونوں بیٹے اس جنگ میں مارے جاتے ہیں اور خدا کا جو عہد کا صندوق ہے وہ بھی چھن جاتا ہے۔ اور جب خبر آتی ہے گھر میں خبر آتی ہے، عالی کاہن بوڑھا ہو چکا تھا اور وہ اپنی وہ جو اس کی سٹک تھی، اس کا عصا تھا، اس کی ٹیک لگا کر کرسی بیٹھا تھا، اور جب اس نے یہ خبر سنی تو وہ ایک دم سے نیچے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی، اور کیا ہوا؟ مر گیا۔ تو نقصان ہوا، بیٹے ہی مر گئے۔ جب ہم مس یوز کرتے ہیں اختیار کا تو خدا کی طرف سے سزا ملتی ہے۔ 5واں جو وجوہات ہے وہ ہے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل۔ جب ہم آزمائش میں پڑھتے ہیں تو پھر ہم
सबर का मुजाहरा नहीं करते, मुझे इशारे होने शुरू हो गए हैं कि भाई बस कर दो, क्योंकि हम खुदा का कलाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। थोड़ा बर्दाश्त करें 10 मिनट। याकूब रसूल अपने खत में लिखता है, अरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो उसे कमाल खुशी समझो, ये जानकर कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को तकमील तक पहुंचने दो, ताकि तुम कामिल और पूरे हो जाओ और किसी बात में नाकिस ना रहो। जब हम आजमाइश में पड़े तो क्या करना है? सब्र करना है। अगर हम सब्र नहीं करते तो फिर हम नुकसान उठा सकते हैं। तो ये 5 बातें हैं जो हमें नुकसान देने की बातें हैं। तो मेरे अजीजों, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है कि मेरा यस्सु, जिंदा यस्सु, इन तमाम बातों के बावजूद आपको बहाल करने की कुदरत रखता है। प्रेज गॉड। जिंदा यस्सु आपको बहाल करने की कुदरत रखता है। तो बहाली के चंद कवानीन है, 4 बातें हैं, जल्दी से करेंगे। नंबर 1 जो है वो सेल्फ एग्जामिनेशन है, अपने आप को जांचना। क्या? अपने आप को जांचना। खुदावंद के कलाम में लिखा है, करंथियों 2 करंथियों 13 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, तुम अपने आप को जांचो कि तुम ईमान पर हो या नहीं हो। बहाली के लिए अभी हमने सीखा कि किन किन चीजों की वजह से हमें नुकसान हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं कि रेस्टोरेशन, बहाली कैसे हो सकती है। तो नंबर 1, सबसे पहले बहाल होने के लिए, जब हमारा नुकसान हो गया, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, तो हमें वापस बहाल होने के लिए क्या चीज चाहिए? सबसे पहले अपना सेल्फ एग्जामिनेशन, अपने आप को जानने की। खुदावंद का कलाम कहता है, तुम अपने आप को जांचो कि तुम ईमान पर हो या नहीं। तुम अपने आप को परखो। क्या तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, वरना तुम नामकबूल हो? जानने की जरूरत है हमें, अपने आप को पहचानने की जरूरत है कि खुदावंद यीशु हमारे अंदर मौजूद है या नहीं है। ये हमें अलग बैठकर अपने आप का तफसील के साथ जांचने की जरूरत है कि यीशु हमारे अंदर है, हम ईमान पर हैं या नहीं है। अगर हम ईमान पर हैं तो यकीन करें हम बहाल हो जाएंगे। इसी तरह दूसरी बात, जो दूसरी मिसाल है, वो मुसरफ बेटे की। लूका की इंजील 15 बाब और 17वीं आयत में लिखा है कि मुसरफ बेटा, सबको पता है उसकी स्टोरी का, वो अपना हिस्सा लेकर चला गया, और जब सब बर्बादी उस पर आ चुकी तो फिर लिखा है 17वीं आयत में लिखा है कि जब वो होश में आया, होश में आकर उसने क्या किया? उसने कहा कि मैं जाऊंगा अपने बाप के पास। उसने कहा मेरे बाप के मजदूरों को कितनी रोटी मिलती है और मैं इधर सूरों के साथ फलियां, वो भी मुझे नहीं मिलती हैं। तो उसने कहा कि मैं उससे कहूंगा, क्या बाप, मैंने आसमान का तेरी नजर में गुनाह किया है, अब मैं इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों में से एक की मानद रख ले। जब हम अपने आप को पहचानते हैं, अपना जायजा लेते हैं कि हम कहां हैं, अगर हम गलत हैं तो फिर हमें माफी मांगने की जरूरत है, वापस पलटने की जरूरत है, ना कि हम घमंड के अंदर सारी जिंदगी गुजार दें। दूसरी जो अहम बात है, इस मुसरफ बेटे ने क्या किया? फिर बहाल हुआ और उसको वही रुतबा, बेटे का रुतबा वापस दिया गया जब उसने अपने आप को जांचा, परखा। तो दूसरी जो खास बात है, नंबर 1 सेल्फ एग्जामिनेशन, अपने आप को जांचना। दूसरा ब्रोकननेस, शिकस्ता दिल और शिकस्ता रूह के साथ खुदावंद के हुजूर आना। ये एक दूसरा पहलू है। नंबर 1 सेल्फ एग्जामिनेशन, बहाली के लिए। दूसरी जो चीज जरूरी है वो है शिकस्ता रूह। जब दाऊद ने गुनाह किया तो ज़बूर नंबर 51 में लिखा है
کہ اس نے معافی مانگی اور اس نے کہا کہ خداوند میں شکستہ دل کے ساتھ تیرے حضور آتا ہوں. کس کے ساتھ؟ شکستہ دل اور شکستہ روح کے ساتھ. لکھا ہے اے خدا تو شکستہ اور خاک نشین دل کو حقیر نہ جانے گا. اے خدا شکستہ روح میری قربانی ہوگی. تو دوسرا جو ہے وہ شکستہ روح اور شکستہ دل کے ساتھ، خستہ دل کے ساتھ اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کرنا. نمبر 3 نالج، علم حاصل کرنا. یہ نالج وہ نالج نہیں ہے کہ یہ اس نالج سے ہمیں کیا ملے گا. یہ وہ نالج ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اس کے لیے دینا کیا پڑے گا اور دینا کیا پڑے گا. جب ہم خداوند کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے مطابق علم حاصل کرتے ہیں، تو خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اس ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں دینا کیا ہے؟ عمل کر کے دکھانا ہے. نہ صرف ہم ایمان رکھیں بلکہ عمل کر کے دکھائیں. اس کے لیے ہم دیکھیں گے یسایہ 60 باب اور اس میں لکھا ہے اٹھ منور ہو. کیا؟ اٹھ. خداوند حکم دیتا ہے اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا ہے اور خداوند کی تجلی تجھ پر طلوع ہے. کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھائی ہوئی ہے. تاریکی مطلب تباہی، بربادی چھائی ہوئی ہے اور قوموں پر اندھیرا ہے، لیکن تجھ پر خداوند طلوع ہے. پریز گاڈ. اور اس کی تجلی تجھ پر ظاہر ہے اور قومیں تیرے نور کی طرف اور سلاطین تیری روشنی کی چمک کی طرف چلیں گی. میرے عزیزو، خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اگر نالج حاصل کریں، یہ نالج جو ہے یہ روشنی ہے، یہ طاقت ہے، یہ نور ہے. اور نور جو ہے وہ اس کا تعلق بحالی کے ساتھ ہے. نالج جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے، علم ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کام کریں، لیکن سمجھداری ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کام کس طرح کرنا ہے. بحالی ایسے ہی آتی ہے. علم ہمیں بتاتا ہے کہ ہم دعا کریں، لیکن سمجھداری ہمیں بتاتی ہے کہ ہم دعا کس طرح کریں. علم ہمیں بتاتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، لیکن سمجھداری ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کیسا روزہ ہم سے ڈیمانڈ کیا گیا ہے، کس قسم کا روزہ خداوند ہم سے چاہتا ہے. آنکھوں کا روزہ چاہتا ہے، من کا چاہتا ہے، یا صرف زبان کا ہی روزہ چاہتا ہے. ہم بھوکے ہی رہیں صرف. نالج ہمیں بتاتا ہے کہ دینا چاہیے، ہمیں دینا چاہیے، لیکن سمجھداری ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کس طرح دینا چاہیے، کیسے دینا چاہیے. لکھا ہے کہ جب تو خیرات کرے تو تیرا دائنا ہاتھ دے تو بائنا ہاتھ نہ جانے. اور آج کل کیا ہوتا ہے؟ کیسے دیتے ہیں؟ فیس بک پر اشتہار دے کر دیتے ہیں. میرے عزیزو، چوتھا پوائنٹ جو بحالی کا ہے وہ ہے پروفیٹک ورڈز، خداوند کا کلام. یسایہ 42 باب میں لکھا ہے 22 آیت میں، مگر یہ ایک لوٹی ہوئی غارت کی ہوئی امت ہے، یہ سب گڑھوں میں پھنسے اور بندی خانوں میں چھپائے گئے. وہ لوٹے گئے اور کوئی نہیں جو چھڑائے، وہ غارت کیے گئے اور کوئی نہیں جو کہے کہ واپس دو. واپس کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بحال کرنا. کوئی نہیں ہے تو کون کہتا ہے کہ واپس دو؟ نبی کہتا ہے، خداوند کا کلام کہتا ہے کہ واپس دو، بحال کرو. خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ دوسرا سلاطین اس کی 6 باب اور پہلی سے 7ویں آیت کے اندر ہم پڑھیں تو وہاں پر ایک الیشا نبی کے معجزے کا ذکر ہے. وہاں پر لکھا ہے کہ نبی زادے جو تھے انہوں نے کہا الیشا نبی سے کہ ہم ایک بڑی جگہ پر وہ بناتے ہیں اپنا ڈیرا،
اور اس کے لیے درخت کاٹنے لکڑیاں کاٹنے کے لیے جاتے ہیں، اور جب وہ درخت کاٹنے جاتے ہیں تو وہاں لکڑیاں کاٹتے ہوئے ایک جو ان میں سے لکڑیاں کاٹنے والا تھا، اس کا کلہاڑا جو تھا، اس کا جو لوہے کا پیس تھا، وہ دریا میں گر جاتا ہے، پانی میں گر جاتا ہے، اور وہ چلا اٹھتا ہے کہ ہائے مالک، یہ تو جو کلہاڑا تھا یہ مانگا ہوا تھا، ادھار لے کر آیا تھا، میرا نہیں تھا۔ تو نبی نے کیا کہا کہ کہاں گرا ہے؟ تو علیشا نبی نے وہاں پر کیا کیا؟ لکڑی پھینکتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ لوہا جو ہے وہ پانی پر تیر کر آ جاتا ہے، اور نبی کہتا ہے کہ ہاتھ بڑھا کر اس کو پکڑ لے۔ پریز گاڈ۔ خداوند جو ہے، جو ناممکن ہے، کیا لوہا پانی پر تیر سکتا ہے؟ کلاڑا پانی پر تیر سکتا ہے؟ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، بہت بڑا لوہے کا پیس ہو نا تو وہ شاید پانی پہ تیرے گا، لیکن چھوٹا سا اور اتنا وزنی کلاڑے کا پیس وہ پانی میں گرا اور اس کے اندر چلا گیا۔ یہ خداوند کے کلام کی قدرت ہے، یہ نبی کی معرفت خداوند کلام کرتا ہے، وہ کاہن کی معرفت کلام کرتا ہے اور بحالی ادا کرتا ہے۔ ایک اور حوالہ پڑھیں گے اور یہ فائنل ہے، نہمیہ کی کتاب۔ نہمیہ وہ بادشاہ، وہ بندہ ہے، وہ کاہن ہے خدا کا، جو اجڑے ہوئے برباد ہوئے یروشلم کو بحال کرتا ہے۔ اور لکھا ہے 5 باب اور اس کی 11ویں آیت سے پڑھیں گے، بس آج کے دن ہی تم ان کے کھیت اور ان کے انگورستان اور ان کے زیتون اور ان کے گھر واپس کر دو۔ پریز گاڈ۔ کیا لکھا ہے؟ آج کے دن ہی تم ان کے کھیت اور ان کے انگورستان اور ان کے زیتون اور ان کے گھر واپس کر دو، اور ان کی اور نقدی اور گیہوں اور مہر اور وہ سود بھی جو تم ان سے لیتے ہو۔ تو انہوں نے کہا ہم واپس کریں گے اور ان سے نہ مانگیں گے، جیسا تو نے کہا ہے ہم ویسا ہی کریں گے۔ تب میں نے کاہنوں کو بلایا اور لوگوں کو قسم دلائی کہ وہ اس کلام کے مطابق عمل کریں گے۔ خداوند کا کلام آج ہمیں بتاتا ہے کہ ہم خداوند کے کلام کی بدولت، نبی کی معرفت، کاہن کی بدولت، کاہن نبی خداوند کے مسنجر ہے، خدا کے نمائندے ہیں، وہ جب اس بات پر مہر کر دیں گے تو ہماری زندگی میں بحالی آتی ہے۔ میری دعا ہے کہ خداوند آپ سبوں کو آج کے اس کلام کے وسیلے سے برکت دے اور آپ کی زندگی میں بحالی اور خوشحالی اور فراوانی لائے۔ آمین۔ شکریہ طارق بھائی، خوبصورت کلام۔ نذرانے کا گیت گائیں گے۔
मेरे घर में आओ, हम अपने सारे हदीये लेकर तेरे घर में आते हो। बनाने बाद में तूने हमें ये सिखाया है। बनाने बाद में तूने हमें ये सिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, खुदाया शुक्र है तेरा, अब वक्त है आखिरी सेशन का। आए मेरे अजीजों, हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे, अपनी दुआएं अपनी चाहें खुदावंद के हजूर में रखेंगे। मैं दावत दूंगा आंटी सीमा को दुआएं आखिरी सेशन के लिए हम सब के लिए खास खुदावंद से दुआ करें, खुदावंद से बरकत चाहें। आज जितनी जाने यहाँ पर मौजूद हैं अपनी अपनी दुआएं लेकर आए हैं, खुदावंद आज उन्हें अहूर की मानी कबूल फरमाए। बहुत सारे नाम हैं जो कुछ देर की वजह से हम पढ़ नहीं सके, लेकिन खुदा उन नामों को जानता है। खुदावंद आप सबके खानदानों को जानता है, उन सब नामों को जानता है। खुदावंद आज उन तमाम लोगों को अपने पाक और पवित्र हाथों से छुए, मसा करे और उन्हें बहाली अता करे। हम मिलकर गीत गाएंगे, ऐ खुदा पाक रूह आज बजकर अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने हाथों को एक दफा फिर खुदावंद की तरफ उठाएंगे।
मेरे अजीजों, सब अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और हमारा ईमान है, हमारा खुदा यहाँ मौजूद है, वो अपने वादे के मुताबिक मौजूद है, क्योंकि उसने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँ। हमारे खुदा का सख्त लगा हुआ है अजीजों, हमारा जिंदा खुदा यहाँ मौजूद है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता अजीजों। जिसने हमारे लिए अपनी जान का कुर्बान कर दी, वो हमें कैसे छोड़ सकता है। जिसने हमारी अपनी जान की कीमत अदा की, उसने अपनी जान की कीमत देकर अपना लहू देकर हमें खरीदा है। हम उसके खून खरीदे लोग हैं, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। बड़े ईमान से अपनी ज़बानों को खोले और बड़े ईमान के साथ अपने खुदावंद का पुकारे। वो हमारा मुफ्ती दाता है, वो देने की कुदरत ताकत रखता है, वो आज हमारे यहाँ मौजूद हमारे दरमियान, वो हमें दुखों से तकलीफों से रिहाई देने आया है, वो हमें अपनी पनाह और सलामती रहमत में रखता है। वो वादों का सच्चा खुदा है। एक जुबान एक खुदावंद की रहमत बचाओ, अपनी जुबान खोले और पूरे ईमान से अपने खुदावंद को पुकारे। प्यार से बड़े प्यारे जिंदा पाक खुदावंद, हमारा ईमान है खुदावंद, तो अपने वादे के मुताबिक क्या मौजूद है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने लोगों के साथ रहता है, हर मुसीबत हर परेशानी में हमारी ढाल बन जाता है। ऐ खुदावंद, तेरे लोग बड़ी आस से रातें लेके आए हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा यीशु फजलों रहमतों से बड़ा है, वो देने की कुदरत ताकत रखता है। आज बाप खुदावंद, कोई झोली खाली न लगे, सब लोग झोलियां भर भर कर यहाँ से अपने घरों का लौटे, तेरे फजलों बरकतों रहमतों से भरे हो जाए। बाप खुदावंद, जितने बीमार आज से लेकर आए तेरे कदमों में, हर एक को खुदावंद छू अपनी कुदरत ताकत से और तमाम बीमारियों से शिफा बख्श नाम करे। बाप खुदावंद, जिनके दिल के बाल बंद है, अपने पापों के प्रेशर से सबके दिल के बलवान को खोल दे यीशु नाम से। और बाप खुदावंद, इनके खुदावंद आगे होकर हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक से शिफा बख्श यीशु नाम से। कितने लोग शुक्र है अपने पाप डॉक्टर से होकर शुगर की बीमारी से शिफा बख्श यीशु नाम से। जिनके बदन में दर्द है, कोई तकलीफ है, यीशु नाम से अपने पाप डॉक्टर से होकर जब मुकम्मल शिफा बख्श। ऐ बाप खुदावंद, जो बेइलाज है जिसमें जुड़े हैं, खुदावंद तू कुदरत का खुदा है, तू मांझ के घर को आबाद करता है अपनी कुदरत ताकत से। खुदावंद बेइलाज शख्स से जुड़ा हो, इलाज ऐसी नेमत अता कर यीशु नाम से। बाप खुदावंद, जब बेरोजगार है, हर एक को रोजगार का मौका कर यीशु नाम से। बाप खुदावंद, जब बीमार अस्पतालों में है या घर में है, और जहाँ खुदावंद ऑनलाइन में ज्वाइन की है, हर एक को खुदा शिफा दे, दुखों से बीमार
परेशानियों से, तकलीफों से, आज के कलाम की कुदरत ताकत से सबकी जिंदगियां बदल जाए यीशु नाम से। आज के कलाम के किसी ने हम शिफा पा जाए कि यीशु की तेरे कलाम की कुदरत ताकत से, तेरे पाक रंग से दुनिया के यीशु नाम से। और खुदा हमें ईमान की मजबूती दे, वहाँ उसे मालिक मजान शुक्र बताकर जो आज तेरा जिंदा कलाम सुना खुदावंद, ये कलाम हमारे दिलों पर नक्श हो जाए। और खुदावंद हम इस कलाम को अपने दिलों में लेकर अपने घरों को लौटे और तेरे इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करें यीशु नाम से। बाप को लेकर जाने के खुदावंद आज बड़ी बरकत दे, हर क्या से मुरादे यीशु नाम से पूरी कर। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। सब थोड़ी देर से खामोशी प्यार करें। हमारा खुदा यहाँ मौजूद है, खुदा उनकी आवाज सुने। वो एक को छू रहा है, वो सबको बरकत दे रहा है, वो सबको सबकी मुसीबतों से, दुखों से, बीमारियों से शिफा दे रहा है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी बड़ाई। ये सब कुछ हमारे बाप हमने बड़े ईमान से मांगा है और हमारा ईमान है हम सब ने पा लिया तेरे प्यारे जिंदा बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीले से, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। सलाम है मरियम फजल, खुदावंद तेरे साथ है और तुम्हें मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो, ताकि खुदा ने हमेशा हो। यीशु जी के नाम की तारीफ हो हमेशा से हमेशा तक। आमीन। बाप, बेटे